Doctor, it's clearly our honor to have you back with us, where we're going to be deep diving more about the myths and debunking the myths, the queries that people have about knee and hip replacement surgeries. Doctor, you have over 44 years of experience, which is clearly like 4 decades of experience, hands on experience rather, in all knee and hip replacement surgeries. So, any of the memorable cases that you can share with us that you remember? So the most memorable case I remember is when I came back after fellowship in Australia and started the cadaveric bone bank, and had this lady from Ambala who had a hip surgery gone wrong, and upper half of her thigh bone was missing. And we took the bone from the bone bank where somebody had donated his thigh bone. We took a part of the thigh bone, and with that we reconstituted the limb. And when she walked, one of the national dailies carried the headlines, "Hope walks on dead man's legs." So that is how it it started off, kicked off as the first major reconstruction in this country using a bone bank. And I think, and she continues to do well. Now it's 20 years, and she continues to do very well with a really biological material, which is bone, and not with some expensive metallic implant. So that's really inspirational, doctor. And somebody with that level of health issue also can be treated. So I'm sure that if you're dealing with any other health issue, you can definitely have a treatment too. Sure. I was trained in Australia, in Queensland, which is the Queensland Bone Bank is in Brisbane, is one of the biggest bone banks in Australia. And after I trained there, I came back. We started working on it. So that was the first cadaveric bone bank in India. And subsequently, I worked with the National Organ and Tissue Transplant Organization, NOTO, also. And then I was involved with registration and licensing of several bone banks all over India, bone banks and tissue banks. And the most latest is the establishment of the bone bank at the Apollo Hospital, New Delhi. I'm very sure that using this biological material will actually enhance the quality of life and functionality of a lot of patients who are currently disabled. डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया, आपने कैडेवरिक बोन बैंकिंग शुरुआत की है इस कंट्री में, तो उसके बारे में अगर आप कुछ जानकारी हमें दे सकें. When we started it, nobody knew. Even now, many people don't know that you can donate your bones after your death. Of course, they have to be collected within 12 hours of the death, or within 48 hours if the body is kept refrigerated. But then, it is possible to donate the bones. And once we actually retrieve bones, which from one person can help 16 to 20 patients. That can change lives of 16 to 20 patients, one person's donation. But we very aesthetically and nicely reconstruct the body so that nobody can actually look at the body and make out that the bones have been taken out. But this particular technique, or the availability of this bone bank, has actually helped hundreds and hundreds of patients with very, very severe complex problems in the last more than 23 years. I think it's not only about losing a life, but also gifting a life once you've left. I think this is a beautiful initiative, doctor, that you've introduced to our country. Thank you very much for bringing in such an amazing initiative in our nation. Thank you. सो डॉक्टर, अगर हम आगे इस विषय पर और बात करते हैं, हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की, तो सर्जरी तो हो जाती है, लेकिन लोग ज़्यादातर घबराते हैं कि क्या ये एक लाइफ टाइम सर्जरी है, क्या ये लास्ट करेगी, कितने वक्त तक इसका असर होता है डॉक्टर, उस बारे में अगर आप जानकारी दे सकें. क्लासिकली, कन्वेंशनली हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, तो हमारा हमेशा से ये प्रयास रहता है कि इंसान का जॉइंट जो है उसकी पूरी ज़िंदगी चले. पर क्योंकि अब पहले की तरह अब बात नहीं है, अब यंगर पीपल आर नाउ ऑप्टिंग फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट. बहुत युवा लोगों में भी होता है, तो इसमें काफ़ी संभावना है कि उनको पूरी ज़िंदगी नहीं चलेगा. तो ऐसे में आज की डेट में हम ये कहते हैं कि कूल्हे का रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट आपको 25 से 30 साल आराम से चलेगा. और अगर हम नी की बात करते हैं तो वो कुछ कम चलते हैं, तो वो 15 से 20 साल चलेगा. डॉक्टर, और एक क्वेश्चन आता है हमारे व्यूअर्स का कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है सर्जरी के बाद.
तो कॉम्प्लिकेशंस हर सर्जरी में होती हैं। जो सबसे ड्रेडेड या सबसे भयावह कॉम्प्लिकेशन जो जॉइंट रिप्लेसमेंट की होती है वो होती है इन्फेक्शन। क्योंकि हम किसी के शरीर में एक इतनी सारी मेटल और इतना सारा आर्टिफिशियल मटेरियल डाल रहे हैं तो उसमें इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। तो उसके लिए हमें बहुत सारी प्रिकॉशन लेनी होती है, लेकिन कुछ पेशेंट फैक्टर से भी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे कि अगर पेशेंट स्मोकर है, सिगरेट पीते हैं, और अगर उनकी डायबिटीज़ है और उन्होंने कंट्रोल नहीं करके रखी है, उनको कई तरह के आर्थराइटिस होते हैं, उनमें किसी भी ऐसी कंडीशन में, या वो स्टीरॉइड्स पे हैं, किसी भी ऐसी कंडीशन में जिनकी उनकी जो प्रतिरक्षा है, जो इम्यून सिस्टम है उनकी बॉडी का, वो कमज़ोर पड़ गया, तो ऐसे पेशेंट इन्फेक्शन के रिस्क में रहते हैं। नर्व्स और वेसल्स की इंजरी बड़ा रेयर है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, वो हो सकता है। घाव भरने में प्रॉब्लम हो सकती है। और क्योंकि ये मरीज़ ज़्यादातर एल्डरली होते हैं तो हमें ये भी एहतियात रखनी पड़ती है कि उनको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन सर्जरी के दौरान ना हो। और एक और चीज़ होती है, किसी भी वृद्ध व्यक्ति में या किसी युवा व्यक्ति में भी किसी भी सर्जरी में, हालांकि वृद्ध में ज़्यादा कॉमनली होता है, क्लॉट बन सकते हैं टांगों में, और वो जो खून के थक्के या रक्त के थक्के खून की नालियों में बन जाते हैं, वो वहाँ से टूट के लंग्स में जा सकते हैं। तो उसके लिए भी पूरी प्रिकॉशन ली जाती है कि ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, पर थ्योरेटिकली ये सब मेन कॉम्प्लिकेशंस मानी जाती है। सो बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आपने कि कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होंगे पोस्ट सर्जरी, बट उन कॉम्प्लिकेशंस के सॉल्यूशंस भी हैं। और हाल ही में डॉक्टर, मेरे एक रिलेटिव की भी हिप फ्रैक्चर की सर्जरी हुई थी। तो उनका ये कहना था कि मैं चलकर आया था हॉस्पिटल, लेकिन सर्जरी के बाद उठ नहीं पा रहा हूँ, चल के घर नहीं जा पा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आम तौर पे पेशेंट्स का है कि सर्जरी होने के बाद कितना वक्त लगता है हॉस्पिटल में फॉर पोस्ट सर्जरी रिकवरी। एंड डॉक्टर, इस तरह की पोस्ट सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उन्हें हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अगर उस बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी हमें दे सकें। रिप्लेसमेंट में या नी रिप्लेसमेंट में 3 से 4 दिन से ज़्यादा रहने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप को ध्यान नहीं है तो बता दूं कि इंडिया में फर्स्ट डे केयर हिप रिप्लेसमेंट हमने ही किया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, जहाँ पे एक यंग लड़के को, जो कि इंजीनियर था, करीब 24 साल का, सिलीगुड़ी से, वो अपने घर से, उसको सुबह उसको हमने अपने होटल से बुलाया और उसको ऑपरेशन थिएटर में बुला के उसका हिप चेंज करके उसको शाम को 5 बजे ऑटो में बिठा के वापस भेज दिया, और अगले दिन वो फ्लाइट पकड़ के सिलीगुड़ी चला गया। तो आजकल दुनिया में डे केयर, शॉर्ट स्टे, रैपिड रिकवरी, इस तरह की टर्म्स यूज़ करके रिकवरी पीरियड को शॉर्टन किया जा रहा है। पर ज़्यादातर केसेस में कभी भी 3 से 4 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में रहने की आवश्यकता नहीं होती है। सो डॉक्टर, अभी आपने इम्प्लांट की बात करी, तो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट, एक फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, तो कितना सेफ होता है एक फॉरेन बॉडी का आपके बॉडी के अंदर होना? आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन बॉडी है या मेटालिक चीज़ है, तो आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन का फोकस होने पे वो चीज़ में इन्फेक्शन जा सकती है। जैसे कि खास करके लेडीज़ में कई बार ऐसा होता है कि नी रिप्लेसमेंट हुआ है और यूरिन में इन्फेक्शन हो गई, तो वो यूरिन की इन्फेक्शन ब्लड से ट्रैवल करके वहाँ पहुँच सकती है। तो हम ये गाइड करते हैं कि आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन बॉडी है, चाहे वो हार्ट वॉल्व है, चाहे वो स्टेंट है, चाहे वो आर्टिफिशियल हिप या नी है, या किसी भी और तरह का इम्प्लांट है, अगर आपको एक बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होती है तो तुरंत उस इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट शुरू करें, उसके ढिलाई नहीं करें। उसमें अगर आप आलस बरतेंगे या उसमें देर करेंगे तो इन्फेक्शन फैल सकती है। इसी तरह कुछ प्रोसीजर होते हैं जहाँ ऐसे बॉडी के पार्ट्स में जहाँ पे कि बैक्टीरिया बहुत होते हैं, जैसे कि अगर आपको कुछ यूरिनरी प्रोसीजर है जिसमें एंडोस्कोपी होना है, पेट की एंडोस्कोपी होनी है, कुछ डेंटल वर्क होना है, तो ये सब चीज़ें अगर आप प्रोसीजर करवाते हैं तो डॉक्टर को बताएं कि आपकी बॉडी में एक इम्प्लांट है, तो वो एंटीबायोटिक कवर में उस प्रोसीजर को करेंगे ताकि उस समय पे वहाँ से जर्म्स आपके जॉइंट पे जाके उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाए। सो डॉक्टर, इम्प्लांट की बात तो हम समझ गए, एंड इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, उसका भी बहुत ख्याल रखना है, वो भी बात हम समझ गए। बट एक आम तौर पे एक क्वेश्चन आया है लोगों का कि क्योंकि एक मेटल पार्ट है आपकी बॉडी में, एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है, तो आर दीज
डज इट रेज द अलार्म इन अ मेटल डिटेक्टर, स्पेशली एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी चेक में या मॉल में या कहीं जाते हैं, तो क्या ये डिटेक्ट हो जाता है? टन मेटल डिटेक्टर्स ऐसा हो सकता है। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, पेशेंट जिनका जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है उनको एक किसी तरह का या तो कार्ड या एक सर्टिफिकेट दे देते हैं फिट टू फ्लाई, जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि इनकी बॉडी में इस जगह पे ये इम्प्लांट है जो डाला गया है, वो एक इसका पार्ट ही है। जिस तरह हर डायबिटिक को एक कार्ड लेके चलना चाहिए कि मुझे डायबिटीज़, अगर मैं बेहोश हूँ तो मेरी ब्लड शुगर चेक की जाए, बहुत लो तो नहीं है। इसी तरह हमें लगता है कि एक इस तरह की इंफॉर्मेशन या कार्ड एक हॉस्पिटल से इशूड हर एक जॉइंट रिप्लेसमेंट पेशेंट के पास होना चाहिए। हम तो करते ही हैं, जिसमें ये लिखा हो कि उनकी बॉडी में किस पार्ट में क्या फॉरेन बॉडी है या कौन सा इम्प्लांट है, ताकि वो वहाँ उनको असुविधा नहीं हो सिक्योरिटी में। सो थैंक यू डॉक्टर। आई थिंक ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जो लोगों को पता नहीं है, कि आपको एक तरीके का सर्टिफिकेट मिल जाएगा वेयर इट शेयर्स दैट आपकी बॉडी में इस तरह का फॉरेन इम्प्लांट है। तो आप इस सर्टिफिकेट को बिल्कुल सेफ तरीके से डिजी लॉकर में भी रख सकते हैं और इसे शो कर सकते हैं जब भी इस तरह का कोई भी सिक्योरिटी चेक से आपको गुजरना पड़ रहा है। तो आप इस तरह की सर्टिफिकेट को दिखाकर बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी एंड आप आसानी से आगे अपना सारा काम कर सकते हैं। सो डॉक्टर, हम इम्प्लांट्स की बात समझ गए, मेटल डिटेक्टर्स की बात समझ गए, फॉरेन ऑब्जेक्ट की बात समझ गए, बट और एक क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स का रहा है कि इस तरह से सर्जरी होने के बाद कुछ हद तक पेन होता है उन्हें, स्पेशली पोस्ट सर्जरी। तो उनका ये कहना है कि क्या हम पेन फ्री हो सकते हैं पोस्ट सर्जरी, क्योंकि दर्द हमारी जिंदगी का एक हिस्सा ही बना रहेगा। क्या है सही तौर पे सर्जरी की पोस्ट सिम्टम्स? तो जैसा मैंने आपको पहले भाग में बताया था कि एक मूल कारण ऑपरेशन करने का ये है कि आपको दर्द से निजात मिल जाए और आपको पेन किलर नहीं खाने पड़े। तो इसलिए पेन परमानेंट नहीं होता है। हिप में पेन बहुत कम होता है और बहुत जल्दी चला जाता है। नी रिप्लेसमेंट एक कुछ ज़्यादा पेनफुल सर्जरी है, लेकिन हम जब नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो आपको 2 घंटे बाद खड़ा करके चला देते हैं, 24 घंटे से पहले सीढ़ियाँ चढ़वा देते हैं और वॉशरूम भेज देते हैं। तो जब कोई पेशेंट पेन के बारे में पूछता है तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको दर्द हो रही होगी तो क्या आप मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे? तो ऑब्वियसली पेन को मैनेज किया जाता है, पेन को कंट्रोल किया जाता है। आज की डेट में नी रिप्लेसमेंट में पेन मैनेजमेंट एक बहुत मेजर पार्ट है ट्रीटमेंट का, और वो मैनेज किया जाता है। और सर्जरी का पेन होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, और अल्टीमेटली हम ये कहते हैं कि 1 साल के अंत पे कोई भी पेशेंट, अगर उसका ऑपरेशन प्रॉपरली किया गया है, कोई भी पेशेंट को पछतावा नहीं होता। सब बहुत उसको नए जॉइंट को एंजॉय करते हैं। अभी रिसेंटली मेरी एक पेशेंट जो है सर्जरी के 2 महीने बाद यूएस गई और बोली कि उन्होंने अपने बेटे के साथ 10 किलोमीटर वॉक किया, जो उनको वो वहाँ से वाशिंगटन से पैदल काफ़ी दूर तक ले गए। राइट। सो डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच ये बताने के लिए कि कुछ हद तक पेन होता है पोस्ट सर्जरी, बट वक्त देने के साथ साथ उसकी रिकवरी ज़रूर हो जाती है। एक और क्वेश्चन डॉक्टर, जब हम ये बात कर रहे थे तो मेरे मन में आया आपको पूछने के लिए कि सीढ़ियाँ क्या हम चढ़ सकते हैं पोस्ट सर्जरी, और अगर चढ़ सकते हैं तो कितने वक्त के बाद पोस्ट सर्जरी हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं? तो 24 घंटे से पहले हम सीढ़ी चढ़वा देते हैं, अनलेस कि पेशेंट थोड़ा कुछ हीमोग्लोबिन कुछ कम है या कुछ मेडिकल रीज़न है तो 1 दिन वेट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल से सीढ़ियाँ चढ़े बिना डिस्चार्ज नहीं होता, बल्कि बहुत सारे पेशेंट तो ऑपरेशन के बाद 3-4 दिन जितने दिन रहते हैं रोज़ जाके सीढ़ी चढ़ते हैं। और हम ये कहते हैं कि कोई पेशेंट अगर तीसरी मंजिल या चौथी मंजिल पे भी रहता है तो ऑपरेशन के 3 या 4 दिन बाद जब वो डिस्चार्ज होता है तो अपने घर पे सीढ़ियाँ चढ़ के ही जाता है, उनको कोई उठा के नहीं ले जाता। सो व्यूअर्स, यू गॉट योर आंसर। आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं पोस्ट सर्जरी, जैसे ही रिकवर होते हैं सीढ़ियाँ बिल्कुल चढ़िए। बट डॉक्टर, एनी सॉर्ट ऑफ पोस्ट सर्जरी रिकवरी जो उनका उन्होंने करना चाहिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक सुझाव अगर आप देना चाहें? तो ऐसा होता है कि जब खास करके नी रिप्लेसमेंट में हमारे यहाँ पेशेंट्स बहुत देर से नी रिप्लेसमेंट कराते हैं, जब खूब डिफॉर्मिटी हो गई होती है, हड्डियाँ टेढ़ी हो गई होती हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई होती हैं। तो मांसपेशियों की ताकत को वापस लाने की जो जिम्मेवारी है वो पेशेंट की ही है। पेशेंट को एक्सरसाइज खूब करनी है, अपनी ट्रीटमेंट का हिस्सा बनना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। आप जितना भी डिस्कशन चाहें सर्जरी से पहले अपने डॉक्टर के साथ करें, ये सब इश्यूज से को डिस्कस करें, पेन का इशू, एक्सरसाइज का इशू,
क्योंकि मांसपेशियां कमज़ोर हो गई तो उनको कुछ समय लगता है ठीक होने में। इसी तरह अगर किसी का कूल्हा खराब है और वो बहुत दिन से लंगड़ा के चलता है, तो जिस दिन कूल्हे का पेन खत्म हो गया उस दिन तो उसको दर्द का लिम्फ खत्म हो जाएगा। उसकी टांग छोटी थी वो बराबर हो गई तो छोटी टांग का लिम्फ खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मांसपेशियां कमज़ोर हैं उनका लिम्फ कुछ समय तक चलेगा, वो 6 हफ्ते से 6 महीने तक चल सकता है, जब तक कि उनके मसल्स रिकवर नहीं कर जाए। तो ये रिहैबिलिटेशन का पार्ट है। आजकल हम लोग प्रीहैबिलिटेशन भी करते हैं कि हम सर्जरी से पहले पेशेंट को ट्रेन करते हैं एक्सरसाइजेस करने में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है पार्ट है ट्रीटमेंट का जो एम्फेसाइज नहीं किया जाता खास करके ओल्ड पेशेंट में, कि सर्जरी से पहले टाइम की मुलाकात से ही जब सर्जरी प्लान होती है हम उनको कैल्शियम विटामिन डी खाने को कहते हैं हड्डियां मजबूत करने के लिए, हम उनको एक्सरसाइज करने को कहते हैं, नी की एक्सरसाइज करने को कहते हैं अपने नी के मसल्स मजबूत करने के लिए, और हम उनको जो इंसेंटिव स्पायरोमीटर होता है जिसमें 3 बॉल रहती है, सांस खींच के आप तीनों बॉल उठाते हैं, और वो और प्राणायाम और चेस्ट फिजियोथेरेपी उनको देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप एक एडवांस स्टेज में सर्जरी करा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आपकी रिकवरी भी फास्ट हो, सेफ हो, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी अच्छी रहे, आप एक्सरसाइज टॉलरेट कर सके, सर्जरी टॉलरेट कर सके। तो इसके लिए हम पहले से ही उनको लंग्स को भी मजबूत करने के लिए कहते हैं। तो बोन मजबूत करनी है, मसल मजबूत करने हैं, और लंग्स को, फेफड़ों को भी मजबूत करना है। बिल्कुल डॉक्टर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि पोस्ट सर्जरी पूरे ही शरीर को मजबूत बनाना है, वही एक सही तरीका है आपकी ओवरऑल रिकवरी का। तो उस पर बहुत बहुत ध्यान दें। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, ये बहुत अहम बात थी बताने के लिए। सो डॉक्टर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था इस वक्त हमारे व्यूअर्स का कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कब तक लास्ट करती है, एंड स्पेशली सर्जरी के बाद उनको और क्या करना चाहिए ताकि इस सर्जरी को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक वो चला सकें और सर्जरी को सक्सेसफुल बनाए रख सकें। पहला तो ये है कि उसको इस्तेमाल करें। उसको इस्तेमाल कराने के लिए आपने कराया है, वो हम बोलते हैं कि छतरी 100 साल चलेगी अगर धूप और पानी से बचा के रखो। तो ऐसी छतरी का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम ये नहीं कहते कि आप इसको बचा बचा के चले ताकि आपको ये ज़्यादा दिन चल जाए। लेकिन हाँ, जैसे आपने सवाल पूछा उसके साथ एक और सवाल है कि लोग बोलते हैं कि हम क्या ज़मीन पे बैठ सकते हैं, क्या हम इंडियन टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनमें आर्टिफिशियल जॉइंट पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो हम आपको इसलिए ज़मीन पे बैठने को मना नहीं करते कि ज़मीन पे बैठने से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, या इंडियन टॉयलेट में इसलिए बैठने को मना नहीं करते कि आप बैठ नहीं सकते। पर ये सब करने से उसका वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है। तो हम कहते हैं आप कर सकते हैं लेकिन एडवाइजेबल नहीं है। और दूसरी बात मैं साथ ही ये कहता हूँ कि अगर आप ऑपरेशन से पहले ज़मीन पे बैठ पा रहे हैं और इंडियन टॉयलेट कर पा रहे हैं तो फिर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं। ऐसे पेशेंट को तो हम ऑपरेट ही नहीं करते। और जो आप अभी नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए हम आपकी सर्जरी नहीं कर रहे हैं, हम आपको चलने के लिए, पेन फ्री होने के लिए और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। आई एम श्योर यू गॉट ऑल द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। आज हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है डॉक्टर से कि किस तरह से हमारी हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हमें अपना कैसे ख्याल रखना है, पोस्ट सर्जरी रिकवरी कैसे होगी, और बहुत सारे डाउट्स जो आपके मन में थे आई एम श्योर वो आज क्लियर हो गए आज के पॉडकास्ट के द्वारा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपने अपना मूल्य समय हमारे पॉडकास्ट के लिए दिया और इतने सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड डॉक्टर, अगर कोई भी पेशेंट या कोई भी व्यूअर आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको फॉर एनी कंसल्टेशन और सर्जरी? So these days, if a patient wants to find me, they'll have no problem at all. It is so easy. In a digital world, I can be found at Indraprastha Apollo Hospital and at New Delhi. I'm available there all days of the week. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। एंड आई एम श्योर आप सभी को अब पता चल गया है कि अगर सही ट्रीटमेंट लेनी है तो डॉक्टर को कैसे कांटेक्ट करना है। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन ऑन बोन एंड जॉइंट हेल्थ, डॉक्टर राजेश मल्होत्रा के चैनल को ट्यून इन करना ना भूले। वी आर अवेलेबल ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। डू ट्यून इन फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। आज के लिए केवल इतना ही था, बट टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।